کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی۔ مہنگائی اور صرف مہنگائی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 103 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 108 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ حکومت کی جانب سے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 103 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ نہ کھانے پینے کو کچھ ملے گا اور پیٹرول جناب علی گھٹتا تو پیسوں میں ہے اور بڑھتا روپے میں ہے۔ اب یہی حال ہے کہ جناب 120 روپے پورا سال دیا، پھر تقریباً اس کو سستا ہونا چاہیے تھا، اب یہ سستا نہیں ہو رہا، اب پھر بڑھا دیا۔ جو تھوڑا بہت اس میں انکریز کیا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہو گیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی چلیں، انشاءاللہ آگے جا کے کمی آ جائے گی، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے کچھ چیزوں میں، پیٹرول میں اور دوسری چیزوں کے اندر۔ صرف پیٹرول ہی نہیں بلکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 3 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت فی لیٹر 108 روپے 44 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کی بات ہوتی ہے تو روپوں میں بڑھائی جاتی ہیں، جب کم ہونے کی بات ہوتی ہے تو پیسوں میں کم کی جاتی ہے۔ پیٹرول کم ہونا چاہیے، لیکن ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، پیٹرول جو ہے کم کر دیتے ہیں قیمت پیسوں میں اور بڑھاتے ہیں 3 روپے 4 روپے 10 روپے، حالانکہ پورے ملک میں جو ہے پیٹرول بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن پھر بھی پیٹرول نہ ہمیں مہنگا کر کے یہ سیل کر رہے ہیں۔ بس گزارا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہی گزارش ہے کہ کچھ مہربانی کرے، ہر چیز کی اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، باقی آپ کو ہم کیا بتائیں، جیسے کاروبار کے حالات بھی نہیں ہیں، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے ہمارا۔ نئے نرخ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت فی لیٹر 108 روپے 44 پیسے مقرر ہو گئی، جبکہ لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 69 روپے 86 پیسے فی لیٹر اور ان کی قیمتوں کا اطلاق 16 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہوگا۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ مہنگائی نے شہرین کی توبہ کروا دی۔ جنوبی پنجاب میں سبزیاں قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ ادرک 1000 سے 1200 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہریوں نے وزیراعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ مہنگائی نے شہریوں کی توبہ کروا دی۔ سناوا اور احمد پور شرقیہ میں سبزیاں پھل عوام کی پہنچ سے باہر، ادرک کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سبزی فروش ادرک 1000 سے 1200 روپے فی کلو تک فروخت کرنے لگے۔ شہری شکوہ کنا کہتے ہیں کہ لگتا ہے خان صاحب نے ادرک کی قیمت پر بھی نوٹس لے لیا ہے۔ ادرک کسی جگہ پر 400 روپے پاؤ مل رہا ہے، دکان پر کسی جگہ پر 300 روپے پاؤ مل رہا ہے۔ کیا اس چیز کو بھی ہم عمران خان کا نوٹس لینا سمجھیں کہ ادرک کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ہے، لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے۔ بہاول نگر میں سبزیاں پھلوں سے مہنگی ہو گئی۔ ٹماٹر سیب سے مہنگا، ہری مرچ کی قیمت انار سے بھی بڑھ گئی۔ ٹماٹر 100 روپے کلو اور سیب کی قیمت 80 روپے کلو ہو گئی۔ ہری مرچ 200 روپے کلو اور انار 150 روپے کلو میں دستیاب۔ لہسن 300 روپے کلو ہو گیا۔ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مرغی کا سرکاری ریٹ 310 روپے مقرر۔ بازار میں مرغی کا گوشت 350 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ انڈوں کا سرکاری ریٹ 189، مارکیٹ میں 220 روپے فی درجن تک فروخت ہونے لگے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے کر دیا سب کو پریشان۔ انڈوں کی قیمت کو پر لگ گئے۔ انڈے 220 روپے درجن فروخت ہونے لگے۔ شہریوں نے انڈوں کی قیمت سن کر سر پکڑ لیے۔ سردی کا موسم ہے اور انڈے کا بہت زیادہ استعمال ہے، بیکری میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی، تو اوورال تمام چیزوں پہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، اور یہ روز بروز کوئی 4 روپے 5 روپے پر درجن ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پہ کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ دوسری جانب مرغی بھی مارکیٹ میں 320 سے 350 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ مرغی خریدنے والوں کا کہنا ہے کہ جہاں 1 کلو مرغی لے کر جاتے تھے اب 1 پاؤ لے کر جاتے ہیں۔ یہ کم سے کم آج 8 دن تو ہو گئے ہیں چکن نہیں پکی۔ یہ اب سوچ رہا ہوں میں اب آج بھی لے کر جاؤں یا نہ لے کر جاؤں۔ یہاں پر کھڑا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں چلو ابھی زیادہ نہیں تو 1 پاؤ لے جاؤں، کیا کروں، اپنے بچوں کو گزارا تو کرنا ہے نا۔ مہنگائی سے صرف خریدار ہی نہیں، دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے گاہک نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیمرامین قرار اور ساتھی رپورٹر ابراہیم کے ساتھ ریشبہ آصف، ملتان۔ سرگودا میں تھیلیسیمیا کا مرض تیزی سے بڑھنے لگا۔ ڈویژن میں 274 افراد تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا، 115 افراد کیریئر نکلے۔ رپورٹ کریں گے فصیح اللہ۔
थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जो जीन्स के जरिए वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। थैलेसीमिया में मुब्तला मरीजों के खून में सुर्ख खुलियों की बड़ी तादाद तबाह होती रहती है और मरीज खून की कमी का शिकार हो जाता है। सरगोदा डिवीजन में 274 अफराद थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला निकले। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 752 अफराद का थैलेसीमिया टेस्ट किया गया, जबकि सरगोदा जिला में सबसे ज्यादा 115 अफराद थैलेसीमिया के कैरियर निकल आए। सरगोदा रीजन जो है ये सबसे आखिर में बना है और इसमें 752 जो है हमने 3 माह में गुज़िश्ता 3 माह में टेस्ट किए हैं और उसमें से जो है 274 जो है इस डिवीजन में कैरियर पेशेंट आए हैं। रीजनल कोऑर्डिनेटर मुनीब अहमद के मुताबिक पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोजेक्ट के तहत शहरियों को थैलेसीमिया टेस्ट की सहूलत दी जा रही है। मुनीब अहमद का कहना था कि शहरियों को शादी से कबल टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो कैरियर लोग हैं वो आपस में शादी ना करें, तो जो भी कैरियर है अगर उनका शादी का इरादा है, शादी प्लान कर रहे हैं, तो वो शादी से पहले अपना ये टेस्ट जरूर करवाएं। थैलेसीमिया का आसान इलाज मरीज के लिए मतवातर इंतकाले खून है, जबकि दवाइयों या हराम मगज की पेवंदकारी के जरिए भी इलाज मुमकिन है। मुल्तान से खबर देंगे। रोही की खबर पर एक्शन। एडीसी का थिएटर्स को पुराने टाइम पर बहाल करने का हुक्म। थिएटर्स की टाइमिंग रात 12 बजे तक बहाल कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर रोही की खबर पर एक्शन लिया गया है। एडीसी का थिएटर्स को पुराने टाइम पर बहाल करने का हुक्म दे दिया। इसी पर बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के खदशात के बायस जो थिएटर टाइमिंग जो है वो तब्दील की गई थी। आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमर जमा कैसरानी की हिदायत पर जो टाइमिंग है वो फिर से बहाल कर दी गई है और इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिलेंस कमेटी मोहम्मद उमर मौजूद हैं। जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। देखिए, बात ये है कि मुल्तान के अलावा तकरीबन पंजाब के तमाम थिएटर जो हैं वो अपने साहब का टाइम पर जो है वो बहाल कर दिए गए थे, लेकिन मुल्तान में ये परेशानी थी क्योंकि यहाँ पर सर्दी की वजह से कोरोना की लहर जो है वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फनकारों की मजबूरियाँ देखते हुए हमने रिक्वेस्ट की अपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से और उन्होंने हमारी बात को फॉलो किया और हमारी बात को मानते हुए और फनकारों की मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टाइमिंग का जो इन्होंने कहा 11 बजे का, वो 11 बजे तक हमने टाइम इनको लेकर। बाकी अब इंशाल्लाह ताला ये थिएटर के जो हिदायतकार है, डायरेक्टर है, इन्होंने हमसे ये कमिटमेंट की है कि इसको SOPs को ख़ास तौर पे ये उसको फॉलो करेंगे और करवाएंगे। उन तमाम चीज़ों को जो कोरोना के वबा से मुंसलिक है उनके पर अमल दरामद करेंगे। ये उस पर अमल दरामद जो है वो खास हवाले से किया जाएगा। एक काफ़ी अरसे से जो है वो आर्टिस्टों के माबैन जो इशू है वो चल रहे थे। पंजाब भर के तमाम थिएटर्स जो है वो साहब का टाइम पर बहाल हो गए थे। अब कल 8 से ही जो है वो मुल्तान के तमाम थिएटर्स भी बहाल हो गए हैं। क्या कहेंगे आप? 12 बजे ड्रामा ख़त्म करेंगे हर सूरत, और इनको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। SOP पे पूरा अमल करेंगे। इन कमेटी का शुक्रिया कि फनकारों के रोजगार का ख्याल रखा है। फनकारों की अगर मुश्किलात की बात कर लेते हैं तो फनकारों को किन मुश्किलात का सामना था जो आप समझते हैं कि अब उनका अजाला हो गया? 8 बजे पब्लिक नहीं आती, 10 बजे दुकानें बंद होती हैं, पब्लिक नहीं आ रही थी। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि सर ये हमारा काम करवाएं कि टाइम 10 बजे की जगह 12 बजे कर दिया जाए ताकि पब्लिक आ जाए दुकानें बंद करके। ये तो इंजॉयमेंट है। तमाम फनकार इतने खुश हैं आज की रात इतने खुश हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता कि इन्होंने उनकी रोजगार मुहैया कर दिए, वरना तमाम बेरोजगार हो चुके थे। जब ठेकेदार के पास पेमेंट नहीं आएगी तो वो देगा क्या? खास तौर पर जो फनकार हैं उनके अंदर खुशी जो है वो इस हवाले से पाई जा रही है क्योंकि मार्केट्स और एंटरटेनमेंट के सोर्स का एक जैसा ही वक्त होने की वजह से फनकारों को मुश्किलात का सामना था कि पब्लिक इस हवाले से नहीं आ रही थी। पंजाब भर के थिएटर्स जो है उनको बहाल कर दिया गया था, जिसमें मुल्तान जो है वो अभी तक बहाल नहीं किया गया था, जिसमें 8 से जो मुल्तान में लगने वाला ड्रामा है वो रात 12 बजे खत्म होगा, जिससे फनकारों के साथ साथ जो थिएटर इंतजामिया है उनमें शहर आलिया के लकड़ मंडी रोड पर टिम्बर माफिया का कब्जा। आधे रोड तक फैली लकड़ी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। फाटक बंद होने के बाद शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर है शहर ओलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले लक्कड़ मंडी रोड के, जहां रेलवे लाइन के साथ मौजूद गैर कानूनी आड़तों के बाइस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं फाटक बंद होने से मुश्किलात और भी बढ़ जाती हैं। आड़तियों का माल रोड को मजीद तंग कर देता है और ट्रैफिक घंटों ब्लॉक रहती है। जगह नहीं मिलती आने जाने के लिए, 2-2 घंटे, घंटा 1.5 घंटा यहाँ खड़े रहते हैं, फिर गाड़ी आ जाती है, फिर चाहे रोक लेते हैं, फिर बीच में ऐसे मसाइल है।
बहुत मिसाल है, यहाँ तो कई मरीज बेचारे दम तोड़ जाए आने जाने। शहरियों का कहना था कि लक्कड़ मंडी में आड़तियों ने इजारादारी कायम कर रखी है। फाटक के लिए पुल भी मंजूर हुआ, मगर आड़तियों ने असर रसूख का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट ही मनसूख करा दिया, क्योंकि पुल बनने से गैर कानूनी आड़तों का खात्मा हो जाना था। छोटे छोटे रास्ते इन्होंने खोले हुए थे, मोटरसाइकिल निकल जाती थी, वो भी इन्होंने बंद कर दिए। निकाल तो लोग फिर भी रहे मुश्किलों से। इससे बेहतर है कोई छोटा अंडरपास बना देते। हमने सुना था 20 साल पहले पुल तामीर हो गया, ये रजिस्ट्री में गवर्नमेंट में आ गया, आज तक तामीर ही नहीं है। आड़तियों के माल ने रोड को तंग कर रखा है। फाटक का पुल न होने के बाइस शहरियों के लिए मुश्किलात और भी बढ़ जाती हैं। शहर मुल्तान के अहम तरीन रोड पर रेलवे के साथ मौजूद आड़तों की किसी भी किस्म की कोई हदूदबंदी न होने के बाइस लकड़ियां रोड पर मौजूद होती हैं, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक इसी तरीके से घंटों ब्लॉक रहती है। अगर फाटक भी बंद हो जाए तो उसके बाद ये ट्रैफिक मजीद ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। शहर आलिया की तरक्याती स्कीमें सियासी जंग की भीड़ चढ़ गईं। अपोजिशन रहनुमाओं के हल्के मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। पीपल्स पार्टी के एमपीए अली हैदर गिलानी के हल्के से यतीमों वाला सलूक। कोई तरक्याती स्कीम ही ना रखी गई। पीपी 211 की स्कीमें नामुकम्मल, 217 को भी फंड जारी ना हो सके। मुल्तान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुख्तलिफ हलकों की करोड़ों रुपए की तरक्याती स्कीमें मंजूर कर ली गयी। तरक्याती स्कीमों में अपोजिशन अरकान असम्बली के हल्के मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी अली हैदर गिलानी के हल्के में कोई तरक्याती स्कीम नहीं रखी गई। फंड्स न मिलने पर मेंबर सूबाई असेंबली अली हैदर गिलानी ने अदालत से रजू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि हल्के को यकसर फंड से महरूम रखा गया। क्या मेरे हल्के पीपी 211 के लोग टैक्स पेयर नहीं है? क्या वो पंजाब के रिहायशी नहीं है? मैं समझता हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 25 की सरी खिलाफ वर्जी है और इसके खिलाफ हम अदालत में भी रजू करेंगे। ये हुकूमत जो है इन्होंने सिर्फ अपने ही जो एमपीएस हैं उनको इन्होंने फंड दिए हैं। अवाम का कहना है कि उन्हें इसलिए सजा दी जा रही है कि उन्होंने अपोजिशन जमात के नुमाइंदे को मुंतखब किया। मौजूदा दौर में हल्के में एक ईंट भी नहीं लगी। यहाँ के इलाके को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। 2.5 साल से एक ईंट भी इधर नहीं लगी और एक भी कोई बिजली का खंबा, गैस या कोई तरक्की काम नहीं। अवाम का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ का इंसाफ देख चुके हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से अपोजिशन हलकों को फंड्स नहीं दिए गए, जिस पर पीपी 211 की आवाम सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि उन्हें इसलिए नजरअंदाज किया कि उन्होंने अपने हलके से अपोजिशन जमात के नुमाइंदे को मुंतखब करवाया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने लाहौर जलसे को तारीखी करार दे दिया। कहा इस्तीफा देने में पीपल्स पार्टी ज्यादा संजीदा है। ये भी कहा कि तमाम जमातों का मीनार पाकिस्तान पर इकट्ठा होना तजदीद अहद है। हुकूमत को पीडीएम के सवालात के जवाबात देने होंगे। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर जलसे के बाद हुकूमती रवैया काबिल मुजम्मत है। महमूद अचकजई की तकरीर पर मनफी रद्द अमल आया। महमूद खान अचकजई के एक एक लफ्ज के साथ हूँ। 3 सूबों को छोटा कहना भी उनकी तौहीन है। तमाम जमातों का मीनार पाकिस्तान पर इकट्ठा होना तजदीद अहद है। 1940 करारदाद पाकिस्तान के वक्त ANP मैंगल साहिबान नहीं थे, मगर अब सब ने मीनार पाकिस्तान पर तजदीद अहद किया। ये जो हमारे 3 छोटे सूबे कहे जाते हैं, उनको छोटा कह के भी उनकी तौहीन की जाती है। वो पाकिस्तान का अहम तरीन हिस्सा है और उन सब की क़यादत का मुज्तमे होना मीनार पाकिस्तान के ऊपर, ये एक दफा का 1940 का करारदाद पाकिस्तान के को रिपीट करने की बात। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना था कि लाहौर का जलसा तारीखी था। शादरा तक लोग ही लोग थे। कई कायदीन मोटरसाइकिल पर जलसा गाह पहुंचे। इमरान खान का जलसा भी मैंने देखा। इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान के चौथे हिस्से पर जलसा किया। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को पीडीएम के सवालात के जवाब देने होंगे। हाथी तो पूरा देखा नहीं था, ये टीवी पे आके बैठ के बातें कर रहे हैं। ये जलसा उनको समझ आती, जो शादरा से लेकर पत्तों की तक जलसा ही जलसा था। जावेद हाशमी का कहना था कि महंगाई में शदीद इजाफा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने जा रहा है, जिससे महंगाई की नई लहर आएगी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि शेख रशीद के वजीर आजम बनने की ख्वाहिश पूरी हो गई। अब शेख रशीद वजीर आजम का ख्वाब देखेंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की लाहौर में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے دوران رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ محمود، علی محمود اور عبدالقادر شاہین بھی مخدوم احمد محمود کے ہمراہ تھے۔ پارٹی وفد نے بلاول بھٹو زرداری کو جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پارٹی کارکنان تیار رہیں، حکومت کے خلاف تحریک اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ عوام دشمن ظالم حکومت کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ عمران خان عوام کے غصے سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور پنجاب کابینہ کا اجلاس جلد ڈیرہ غازی خان میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اجلاس میں جنوبی پنجاب کو سرپرائز دیں گے۔ مشیر وزیر اعلیٰ رفاقت گیلانی کی گفتگو، بولے جنوبی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ریکارڈ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ لیا سے رکن صوبائی اسمبلی رفاقت گیلانی نے روہی کو بتایا کہ پنجاب کابینہ کا اجلاس جلد ڈیرہ غازی خان میں ہونے جا رہا ہے۔ اجلاس کی سربراہی خود وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے اور جنوبی پنجاب کو سرپرائز دیں گے۔ امید کافی ہے اور ساؤتھ کے لیے ہی یہ سارا کام ہوا ہے، تو انشاءاللہ ساؤتھ کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہوگا اور یہ سی ایم صاحب خود اناؤنس کریں گے۔ یہ ایک سرپرائز ہے، اس کو سرپرائز ہی رہنے دیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ رفاقت گیلانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ جنوبی پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ لیا میں 2 بڑے منصوبے مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ چائلڈ اینڈ مدر کیئر اسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جبکہ تونسا لیا پل مکمل کر لیا گیا ہے۔ لیا میں ایک میگا پروجیکٹ جو کہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل 6 اضلاع میں دیا گیا، جس میں ہماری خوش قسمتی ہے اور ہمارے لوگوں کی، تو انہوں نے میری ریکویسٹ پہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل لیا میں دیا ہے اور یونیورسٹی آف لیا بھی بہت جلد بننے جا رہی ہے۔ تو یہ 2 میگا پروجیکٹ ہیں۔ اس کے علاوہ سی ایم صاحب نے کافی سارے پروجیکٹ ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ لیا کی عوام بڑی خوش ہے اور ہم مطمئن ہیں کہ سی ایم عثمان بزدار کی قیادت میں ہمارا لیا بلکہ پورا ساؤتھ انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ رفاقت گیلانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جنوبی پنجاب پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ جلد ہی ایسے منصوبے بھی شروع ہوں گے جو شہریوں کی قسمت بدل دیں گے۔ شہری کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ڈیرہ غازی خان میں منعقد ہونے والے کابینہ کے اجلاس کے بعد ڈیرہ غازی خان میں بہت سارے پروجیکٹس آئیں گے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن ملک، ڈیرہ غازی خان۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے بڑے منصوبوں کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اجلاس میں ضلع کے تمام ایم پی ایس نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا کہنا تھا کہ منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ملتان کی یونین کونسل نمبر 68 فیض ٹاؤن، طارق آباد اور احمد آباد میں ترقیاتی کاموں کے لیے سروے کیا گیا۔ حلقے میں نئی سڑکوں اور سیوریج نظام کو بہتر بنانے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی۔ رپورٹ کریں گے امجد ملک۔ ملتان کی یونین کونسل نمبر 68 کو اپ گریڈ کرنے کے لیے سروے کیا گیا۔ فیض ٹاؤن، طارق آباد اور احمد آباد میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پی ٹی آئی رہنما راؤ آصف انور، ایم ڈی اے اور واسا کی ٹیموں نے علاقے کا جائزہ لیا۔ راؤ آصف انور کا کہنا تھا کہ یہاں پچھلے 30 سالوں سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ گلیاں اور سیوریج کا مسئلہ انتہائی گھمبیر ہے۔ سابقہ ادوار میں اس حلقے کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ اب ہم 24 کروڑ روپے کے فنڈز اس یونین کونسل کو دے رہے ہیں۔ یہ سکندر یاد بوسن صاحب یہاں پہ ایم این اے رہ چکے ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہیں، یہ ان کا حلقہ تھا، تو انہوں نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کروائے۔ یہ 2 سال کے اندر ہم نے جتنی گلیاں بنوا چکے ہیں، آپ نے پہلے بھی وزٹ کی ہیں، تقریباً ہم 50 سے زیادہ گلیاں بنوا چکے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین ایم ڈی اے اشرف ناصر خان کا کہنا تھا اس حلقے میں ڈسپوزل اسٹیشن کا کام جاری ہے۔ نئی سیوریج لائن بچھنے سے یہاں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب یہ سیوریج کے کام کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، سیوریج واسا کی پوری ٹیم بھی آئی ہوئی ہے۔ اب ہم اسے دیکھیں گے، اس کی پیمائشیں وغیرہ کر کے یہاں سیوریج کے مسائل حل کریں گے۔ اس موقع پر شہریوں نے وفد کا پرتپاک استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ روہی کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان بیت المال نے 2 دلہنوں کے جہیز کے لیے متاثرہ خاندان کو مالی امداد اور کپڑے فراہم کر دیے۔ چند روز قبل اڈا نواب پور ملتان میں شادی والے دن 2 دلہنوں کا سامان جل گیا تھا۔ سہیرا کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان کے علاقے نواب پور اڈا پر 2 بیٹیوں کا جہیز جلنے سے خوشی ماتم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ روہی نے بچیوں کے لیے آواز اٹھائی تو ایم ڈی پاکستان بیت المال اون عباس بپی نے متاثرہ خاندان کی مالی امداد کر دی۔
तो एमडी बैतुल ऑन अब्बास बप्पी साहब ने इसके ऊपर फौरन एक्शन लेते हुए आपकी खबर के ऊपर, और ये सारा कुछ हमें हिदायत की थी, डायरेक्टर साहब को भी, मलिक अरशद साहब को, मुझे भी पर्सनली हिदायत की थी कि फौरी तौर पर इनको कुछ थोड़ा बहुत कंपनसेट किया जाए। हम कंपनसेट तो नहीं कर सकते, जाहिर बात है इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जितना एक सिंबॉलिक वैल्यू के तौर के ऊपर, ताकि इनका हौसला हो और इनको थोड़ा सा, इनके लिए दुआ गो भी हैं, और जो हो सका है पाकिस्तान बैतुल माल ने एक चेक और ये थोड़ा सा जो कपड़े वगैरह का वो है। हाजी शौकत को इनकी बेटियों के लिए बैतुल माल की जानिब से 60,000 का चेक, 20 जनाना 10 मर्दाना जोड़े और बच्चियों के लिए 2 कुरान मजीद फराहम कर दिए गए। मेंबर पाकिस्तान बैतुल माल शेख फरूक जुबैर और रेजिडेंट डायरेक्टर मलिक अरशद ने चेक और जोड़े हाजी शौकत के हवाले किए। एमडी ऑन अब्बास बप्पी साहब ने जो वादा किया है वो सारा वादा पूरा हो गया। 60,000 का वादा किया, 60,000 का कुछ चेक मिल गए और कपड़े मिल गए, कुरान शरीफ मिल गए। उन्होंने बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने बड़ा तहे दिल शुक्रिया अदा करने। दुख की इस घड़ी में साथ देने पर मुतासरा हाजी शौकत ने रूही का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बहावलपुर प्रेस क्लब में सरसादिक कॉर्नर का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब ने किया। वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब ने कहा कि बहावलपुर के मसाइल उजागर करने में प्रेस क्लब भरपूर किरदार अदा कर रहा है, जो खुशाइंद है। बहावलपुर प्रेस क्लब की बालाई मंजिल पर 14 लाख मालियत का सरसादिक हॉल बनाया गया, जिसका इफ्तिताह सदर प्रेस क्लब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी, एडिशनल कमिश्नर महर खालिद अहमद ने अरकान प्रेस क्लब के साथ मिलकर किया। सदर प्रेस क्लब का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से खुसूसी ग्रांट मिली, जिसे फौरी तौर पर इस्तेमाल में लाया गया। वाइस चांसलर का कहना था कि सहाफत और सहाफियों के फलाह के लिए यूनिवर्सिटी अपना किरदार अदा करती रहेगी। और रहीम या खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सेहत की जांच के लिए बड़ा इकदाम। मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए चुगताई लैब और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। मेंबरान को तमाम टेस्ट पर 25% रियायत मिलेगी। बीमारी की जांच के लिए महंगे टेस्टों से छुटकारा देने के लिए सस्ते दामों तिब्बी टेस्ट की सहूलत देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चुगताई लैब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद और सीनियर रीजनल मैनेजर चुगताई लैब सैयद शबीर अहमद ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2000 से जायद मेंबरान बीमारी की तशखीस के लिए 25% राहत पर चुगताई लैब से टेस्ट की सहूलत हासिल कर सकेंगे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद का कहना है कि चुगताई लैब के टेस्ट की रिपोर्ट इंतहाई मुसन्नद होती है। चैम्बर के मेंबरान को सहूलत देने के वादों पर अमल पैरा है। चुगताई लैब के साथ ये एक एमओयू साइन किया है कि भी हमारे मेंबरान के लिए वो उसको 25% लेस देंगे जो भी वो टेस्ट कराएंगे, ताकि इसमें एक तो मेरा फेथ है, मुझे यकीन है कि चुगताई लैब से जो रिजल्ट होता है वो 100% सही होते हैं। रीजनल मैनेजर चुगताई लैब सैयद शबीर अहमद का कहना है कि चुगताई लैब अदारों के साथ मिलकर इन्हें सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रही है। रहीम या खान चैम्बर के साथ इनका मुआहदा मेंबरान के लिए फायदा मंद है। हम इनको सिर्फ अक्रॉस दी पाकिस्तान, सिर्फ रहीम या खान के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहां भी जाएंगे एमओयू के थ्रू भी और जो ब्लू कार्ड की हमारी इनके साथ बात हुई है उसके थ्रू भी ये पूरे पाकिस्तान में किसी भी चुगताई के सेंटर, मेडिकल सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर जाके 25% जो डिस्काउंट है उसको अवेल कर सकते हैं। मुफाहमती याददाश्त के दस्तखत के मौके पर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आजम शबीर, चुगताई लैब के कॉर्पोरेट मैनेजर अब्दुल गफूर, असिस्टेंट रीजनल मैनेजर मोहम्मद अजमल, इंचार्ज सेंटर नीस अहमद और कॉर्पोरेट ऑफिसर वकास अहमद शरीक थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की सेहत की जांच के लिए चुगताई लैब के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत एक अच्छी पेशरफ्त है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान को मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए दीगर अदारों के साथ भी एमओयू साइन किए जा रहे हैं। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद नवीद अकरम फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब हो गए। हमालिया फुटबॉल क्लब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद नवीद अकरम फुटबॉल नॉर्मलाइजेशन पंजाब के चेयरमैन मुंतखब हो गए। उनका कहना था कि वो वालिदैन की दुआओं से इस ओहदे पर फाइज हुए हैं। खुशी है कि हमालिया क्लब ने उन पर एतमाद किया। फुटबॉल के खिलाड़ियों के मसाइल हल करना अवलीन तरजीह होगी। बोगस क्लब बंद कर देंगे। जो एक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा एक काम है चेयरमैनशिप का, नॉर्मलाइजेशन कमेटी का, के कन्वीनियर्स लगवाने हैं, उसके बाद जो बोगस क्लब हैं उसको मतलब साइड पे करना है और जो क्लब हैं एक्टिव क्लब हैं उसको एक स्क्रूटनी के बाद उसको पास करके फिर वो एक इलेक्शन के तौर पे डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद फिर पंजाब का सिलसिला शुरू होगा। सदर हमारे फुटबॉल क्लब का कहना था कि नवीद अकरम हमारा फखर है। वो जनूबी पंजाब के पहले फुटबॉलर हैं जो चेयरमैन पंजाब नॉर्मलाइजेशन मुंतखब हुए। दुआ गो है कि अल्लाह उन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं।
नेशनल चैंपियन है पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेलते हुए, तो मैं आज खास तौर पे इनके मुबारकबाद देने के लिए आया था। नौमुंतखब चेयरमैन पंजाब नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मजीद कहना था कि फुटबॉल को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी, ग्राफ लेवल में भी मजीद बेहतरी लाई जाएगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। धरती मां पर जान निछावर करने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद एजाज की 11वीं बरसी लोधरा में मनाई गई। अहले इलाका ने उनके घर को शहीद के घर से मंसूब कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक भुट्टा। शहीद मोहम्मद एजाज ने इब्तदाई तालीम आबाई इलाके से हासिल की और 20 साल की उम्र में पाक फौज को ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद एजाज ने 15 दिसंबर 2009 को सियाचिन में दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद के जस्दे खाकी को आबाई इलाके मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। शहीद के अहले खाना आपकी अजीम कुर्बानी पर आज भी फख्र करते हैं। उनका कहना है कि वो भी पाकिस्तान पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। 23 साल की उम्र में शहादत का मकाम पाया, सियाचिन गलशेरियर में शहादत हासिल की। उसके अलावा सर हमारे सर फख्र से बुलंद है कि हमें हमारे घर को शहादत के मकाम से मंसूब किया हुआ है और हमारा हर बच्चे की यही ख्वाहिश है कि उन्हें शहादत का मकाम मिले और अपने मुल्क की खातिर माल जान से लड़े। शहीद मोहम्मद एजाज की 11वीं बरसी पर कुरान ख्वानी की गई और दुआ का भी एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के हमरा मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।